May I come in, sir? May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Shweta Bharti, Yes, sir. you are comfortable? Yes, sir. Okay, you are okay with Hindi and English? Yes, sir. Okay. You have done postgraduate in geography, right? Yes, sir. 2024. Geography is optional and you do reflective lekhan, Yes, sir. right? Who's the president of Egypt? Sorry, sir. Why the European countries, you are a geography student all throughout, why the European countries are maintaining good relation with Egypt? So the first point that I can think is that Egypt is a major player with respect to African Union and African continent. So having good relationship with Africa, who is going to have good demographic advantage in the future, is the first point, sir. Second, with respect to the famous Strait of Bab al Mandeb, which is related to Egypt, is also there. So that 2 points that I can recall now, sir. Shweta, can you give a geographical point of answer? Yes, sir. Same Sir- question, but geographical, if you don't mind. No? Sir, firstly, that I said is more about the sea line of communication that is passing through the Red Sea. That's why it is important. And second, sir, with respect to the future that we are seeing in the coming years or decades with respect to at world level, Egypt is going to be a major player with respect to development of Africa. So having good relationship with Africa is going to be advantageous for the trade and other purposes, sir. On that basis, geopolitics is going to be a major role. Shweta, who is the president of Iran at the moment? Sir, I'm not able to recall. Okay. Iran and North Korea. Which one is bigger? Sir, geographically or by area wise, Iran Yeah, is geographical. Whatever I'm asking, geography is. bigger. Yes, sir. Which one? Iran. Iran. But why is it that? What is the reasons USA is not targeting North Korea and is targeting Iran? So the first reason is with respect to the nuclear enrichment program, which was happening in Iran, and it has enriched uranium up to 60%. So countering the threat was the one intention behind the attack of USA on Iran. Second, sir, with respect to the ballistic missile, which has been used by Iran on Israel, was the second point for which the Iran has targeted. Sorry, sir, USA has targeted Iran. And with respect to North Korea, sir, I think the threat of nuclear attack from North Korea is very imminent because it is not guided by any agreement. So that is the reason, sir, that I can mention here. My last question. A girl is born in 1950. She dies in 1950. 1950, she is born. 1950, she is dead. But when she dies, she is 20 years old. How? Sir, if the birth and death year is same, so I don't think the I'm not saying, I'm saying 1950 she was born, 1950 she died. But at the time of death, she was 20 years old. How? Question is very simple. sir, at present time, I don't think that this is possible because the birth and death year is the same. Okay, thank you. Thank you, sir. ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, रिफ्लेक्टिव लेखन आप करते हैं, क्या होता है रिफ्लेक्टिव लेखन? सर, रिफ्लेक्टिव लेखन हॉबी है मेरी। ये एक तरह का आर्ट है जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और जो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको रिफ्लेक्टिव बेसिस और एनालिसिस बेसिस पे लिखते हैं, जिसको हम फ्यूचर में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, उन चीज़ों से सीख सकते हैं। जैसे मैं कभी कभी डायरी राइटिंग करती हूँ, कुछ ऑब्जर्व किया तो, और कभी कभी रिफ्लेक्टिव लेखन के थ्रू पोएम भी लिखती हूँ।
सीक्वेंस कैसे बन पाता है? क्योंकि आप 27 ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, तो कभी कभी डायरी लिख लेते हैं, फिर उस डायरी का यूज क्या होगा? फिर तो बहुत सारा डेट गुजर जाता होगा, पता नहीं वो लिखी हुई चीज़ याद है या नहीं है। सर मुझे लगता है कि जो डायरी लेखन है वो एक मेमोरी ट्रीजर की तरह काम करता है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ, फिर भी सर मैं 10-15 डेज़ पर लिखती हूँ और पोएम के थ्रू मैं लास्ट रिफ्लेक्टिव। टाइम आपने कब लिखा था डायरी? सर लास्ट टाइम मैंने 15 मार्च को लिखा है। क्या खास था 15 मार्च को? सर मैं वापस पटना से बिहार शरीफ जा रही थी और देयर वाज वन दिस गर्ल, स्मॉल गर्ल, शी वाज स्माइलिंग एंड आई वाज pressurized by this exam, giving exam and feeling exhaustive. So she smiled seeing my face. So sir वो observation मैंने लिखा कि despite of anything, any problems, we need to move on and we need to smile and take things पोस्ट at प्रेफरेंस this आपका level. क्या है? फर्स्ट 5? सर पहला है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस BAS एंड सेकेंड इज़ बिहार एजुकेशन सर्विस, थर्ड सर बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस एंड देन बिहार रेवेन्यू सर्विस एंड देन सर DSP। पुलिस सर्विस? पुलिस सर्विस को बहुत नीचे रखा है, जबकि आमतौर पर वो एक सुपीरियर सेवा माना जाता है BPSC के थ्रू। सर मैं इस बात से सहमत हूँ। एक्चुअली मुझे हेल्थ इशू है, आई इशू, हाई मायोपिया, इसलिए मैंने इसे नीचे रखा है। ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पदाधिकारी किस विभाग के नियंत्रण में काम करते हैं? सर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है डिपार्टमेंट। अभी बिहार में उसके मंत्री? सॉरी सर मैं एक बार इसे देख लूँ। ठीक है सर। धन्यवाद। अब वो कब लगा कि आपको सिविल सर्वेंट बनना चाहिए? सर मैं जब 10th का एग्ज़ाम दे रही थी, जब वो ट्रांजिशन फेज़ होता है, जब हम 11th-12th में जाते हैं और आगे के बारे में सोचते हैं, उस समय मैंने सोचा कि मुझे सिविल सेवा ज्वाइन करना है। यानी 2016 में? यस सर। तो फिर 10 साल की उम्र पे सर डिटरमाइंड नहीं थी कि आपने सब लोग के लिए? सर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने सिविल सेवा की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी शुरू कर दी और बीपीएससी की तैयारी मैंने बाद में शुरू की। स्टार्टिंग में मैं यूपीएससी की तैयारी कर दी थी और वहाँ इंटरव्यू में भी अपीयर हूँ। हालांकि सर कुछ मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो मैं निरंतर कोशिश में हूँ कि सिविल सेवा में आ जाऊँ। और तो सिविल सेवा मतलब क्या, स्टेट सर्विस कमीशन या यूपीएससी? आपको एक्चुअल टारगेट क्या है? सर अभी तो बीपीएससी टारगेट है। उसके बाद यूपीएससी के बाद हो जाएगा तो यूपीएससी नहीं देना फिर उसके बाद? सर मैंने यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स दे दिए। अच्छे अपने अटेम्प्ट सामने Yes, लॉस कर दी। यानी बिहार आपके लिए हमेशा सेकंड चॉइस था? नो सर, मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा प्रायोरिटी है। मैं बिहार में काम करूं या ऑल ओवर इंडिया में काम करूं, एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों से जुड़कर काम करना मेरा लक्ष्य है, ना कि किसी पोस्ट और किसी जगह पे वैल्यू देना। आपको नहीं लगता कि आप जिस जमीन से जुड़ी हुई हैं, विशेष रूप से ऐसा राज्य जो भारत में गरीब राज्य की लिस्ट इसी राज्य से शुरू होती है, तो यू शुड हैव एनी मॉरल ऑब्लिगेशन और दिस स्टेट की नहीं, भाई को तो बीपीएससी के थ्रू ही जाना चाहिए और अपने राज्य को पहले सर्व करना चाहिए? यस सर, बिल्कुल लगता है। और यूपीएससी में भी अगर एग्ज़ाम देते हैं तो कार्डर चॉइस होता है और मैंने हमेशा नहीं होम होता। स्टेट। नहीं होता, अब रेयरली मिलता है। यस सर, पर चॉइस होती है और मैंने कोशिश की है कि उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में ही हमेशा रखा है। बात रही सर बिहार के लिए सेवा करने के लिए, तो मैं बीपीएससी इंटरव्यू के थ्रू चयनित होना चाहती हूँ, ताकि बिहार के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया जा रहा है अभी और डेवलपमेंट में अपना हाथ दे सकूँ। क्या करना चाहिए आने के बाद सिविल सेवा? सर फर्स्टली तो एजुकेशन में काम करना चाहूँगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। सेकेंड सर, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूम किया है इस सेंचुरी में, तो वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ना, अप स्किलिंग कोर्सेज इंटीग्रेट करना पढ़ाई के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मार्केट रेडी हो सके। सर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये कैसे हेल्प करेगा, या आपका ग्रेजुएशन या पीजी जिसमें है? यस सर, ज्योग्राफी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं कि ये कैसे हेल्प करेगा, तो पहला सर बहुत सारी स्टडीज़, फिजियोग्राफिकल स्टडीज़ को आइडेंटिफाई करके रीजनल प्लानिंग में हेल्प किया जा सकता है सर। दूसरा सर, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना जो हो रहे हैं या
ओशियनिक फिनोमेना या अदर फिनोमेना हो रहे हैं जिससे डिजास्टर्स आते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्पफुल होगा माय सर। लास्ट क्वेश्चन टू यू, अब बीएचयू की छात्रा है, यस सर। बीएचयू की स्थापना कब हुई और जब स्थापित हो रही थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। गवर्नर जनरल सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। आपने अधूरा ज्ञान दिया मुझे, आपने पूछा नहीं। सॉरी धन्यवाद सर, सर। थैंक यू सर। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट सर डिजास्टर मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रक्रिया है जिसके द्वारा अगर डिजास्टर आ रही है तो उसको कैसे प्रिपेयर्डनेस के थ्रू उसको कैसे, अगर आ चुकी है तो कैसे उसको मैनेज करेंगे, पहले फर्स्ट एड देंगे या और आगे के लिए प्लानिंग कैसे करेंगे। उसके पहले भी सर प्री डिजास्टर कैसे प्रिपेयर करें, ट्रेनिंग दे रहे, मॉक ड्रिल देके, ताकि जो उसके उस डिजास्टर से होने वाले लॉस हैं उसको कम किया जा सके। जैसे हमारे यहाँ फ्लड की समस्या है, उसके बारे में बताइए, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए? यस सर, ये सही बात है कि 70% से ज़्यादा जो उत्तरी बिहार है फ्लड से प्रोन एरिया है। सर मुझे फर्स्ट लगता है कि जो रिवर प्ले जोन एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। सेकेंड सर इम्बैंकमेंट में फोकस किया जा सकता है ताकि ये फ्लड को रोका जा सके सर। सेकेंड सर मुझे लगता है कि नेपाल से बहुत सारी नदियाँ उत्तरी बिहार में आ रही है, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट और डैम कंस्ट्रक्शन ये सब कॉपरेट और कोऑर्डिनेट करके बनाया जा सकता है सर। और थर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा है बिहार में, उसको और स्ट्रेंथन किया जा सकता है ताकि ह्यूमन लॉस और प्रॉपर्टी लॉस और रिड्यूस हो। रूम फॉर रिवर कॉन्सेप्ट जानती है फ्लड के संबंध में? सॉरी सर। रूम फॉर रिवर, रूम फॉर रिवर। सॉरी सर। थैंक यू। आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं।